નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો મંતવ્ય ન્યૂઝ અને હું છું ધાર્મિક. ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ હાલ યુક્રેનથી મુંબઈ પરત પહોંચ્યા છે. યુક્રેનમાં ફસાયેલા ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ મુંબઈ પરત પહોંચ્યા છે. યુક્રેનમાં ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ ફસાયા હતા, ત્યારબાદ તેને મુંબઈ પરત લાવવામાં આવ્યા છે. 219 જેટલા ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ યુક્રેનથી ભારત પરત પહોંચ્યા છે. ગુજરાતના તેમાંથી 44 વિદ્યાર્થીઓનો સમાવેશ થાય છે. એર ઇન્ડિયાની વિશેષ ફ્લાઇટ A1 1944 થી તેઓને પરત ભારત લાવવામાં આવ્યા છે. સ્લોવાકિયાની પણ વાત કરવામાં આવી હતી, ત્યારે રોમાનિયાથી 219 વિદ્યાર્થીઓ ભારત પરત લાવવામાં આવ્યા છે. મુંબઈના શિવાજી એરપોર્ટ પર વિદ્યાર્થીઓને પરત લાવવામાં આવ્યા છે. As you go back home, please reassure all your who are in Ukraine not to worry. Be patient. Today the Honorable Prime Minister spoke to the Ukrainian President also and requested him to keep all Indians safe and secure, to provide safe passage to all your colleagues who are still there. The Russians have also promised to help evacuate all our Indian nationals. So I would urge all of you, be very strong and give that strength to all your other friends who are still in Ukraine. Another flight will be coming into Delhi shortly by the morning, and this process will continue. I must thank the Air India crew and the entire Air India crew. And that is what the true spirit of nationalism is. यही भारत की ताकत है और इसी ताकत को हमको उन सब बच्चों को देना है जो अभी वहां पे है. और आप सबका तहे दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत. आप सब सुरक्षित हैं, हम उसके लिए भगवान से धन्यवाद करते हैं. और यहाँ भी आपकी सब सुविधाओं के इंतजाम किया गया है, आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा. वेलकम बैक टू द मदरलैंड. have come back home. And as you go back home, please reassure all your who are in Ukraine not to worry. Be patient. Today the Honorable Prime Minister spoke to the Ukrainian President also and requested him to keep all Indians safe and secure, to provide safe passage to all your colleagues who are still there. The Russians have also promised to help evacuate all our Indian nationals. So I would urge all of you, be very strong and give that strength to all your other friends who are still in Ukraine. Another flight will be coming into Delhi shortly by the morning, and this process will continue. I must thank the Air India crew and the entire Air India crew. And that is what the true spirit of nationalism is. यही भारत की ताकत है और इसी ताकत को हमको उन सब बच्चों को देना है जो अभी वहां पे है. और आप सबका तहे दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत. आप सब सुरक्षित हैं, हम उसके लिए भगवान से धन्यवाद करते हैं. और यहाँ भी आपकी सब Returning back to your motherland, there was many rumors, like the people were very much panicked. Like in Kharkiv area, it is very difficult. I am from Chernivtsi Bukominian State Medical University, so I had that trust in my Indian government that Indian government will definitely bring us all home. सो इंडियन गवर्नमेंट में तो हम शक कर ही नहीं सकते, क्योंकि विदेश में जो है वो घर तो जरूर आएगा. तो हमें डर तो जरूर बिल्कुल नहीं था. हाँ, एक सुबह जब खारकीव पे बम फटे तो हमें था कि यार अब क्या होगा, हम वापस कैसे आएंगे. लेकिन हमें था कि हमारी सरकार कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी यार, हम भारत से हैं, हम कभी ना कभी मतलब वापस तो जरूर आएंगे. तो हाँ, डर का माहौल था. कुछ न्यूज पे कुछ कभी कभी लोग पैनिक कर जा रहे थे, उसमें क्या कोई गलती नहीं है, क्योंकि भगदड़ जैसी सिचुएशन हो चुकी थी. लेकिन सब बहुत अच्छा था. बहुत रिलैक्स दिख रहे थे. आपने मिनिस्टर साहब को थैंक यू किया, उनके साथ सेल्फी ली. व्हाट वाज दैट फीलिंग? बहुत अच्छी फीलिंग है कि सर हमारे लिए टाइम दे रहे हैं और हमको रेस्क्यू कराने के लिए इतना बड़ा स्टेप लिया सर ने. तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ये चीज कि सर आए, हमें रेस्क्यू किया. और हम तो साधारण नागरिक हैं, अब सर आए, हमको रेस्क्यू किया, बहुत अच्छा लगा. धन्यवाद.
कैसा फील? जब से ये क्राइसिस शुरू हुआ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार चिंता में थे कैसे हमारे सब भाई बहन, हमारे बच्चे, हमारे नागरिक सुरक्षित देश में जल्द से जल्द वापस आ सके। हमें निरंतर हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर संपर्क साधे हुए थे सभी देशों के साथ, रशिया, यूक्रेन और आसपास के सभी देश, सबके साथ उनकी बातचीत चल रही थी और पूरे रूट्स बनाए गए। सभी स्थानों पे हमारे एम्बेसी के ऑफिशियल्स पहुंचे, हेल्पलाइन एकदम एक्टिवली काम करी और संतोष की बात है कि सुरक्षित आज हमारे 219 बच्चे, भाई बहन, साधारणतः सभी स्टूडेंट्स हैं, अधिकांश बेटियां हैं, वो सब सुरक्षित आई हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे विशेष मुंबई भेजा कि मैं इनका स्वागत करूं, इनकी देखरेख करूं। आपने देखा होगा सब अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, इमिग्रेशन पे बहुत सरल तरीके से करके उनके बैग्स देके उनको अपने गंतव्य स्थान पर भेजा जा रहा है। हमारे लिए तो इतनी संतुष्टि है कि ये पहला बैच अब पहुंचा है, दूसरा बैच भी जल्दी दिल्ली पहुंच जाएगा और अब ये लगातार निरंतर प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द सबको लौटाया जाए। जब तक सबके सब वापस नहीं आ जाते, पूरी केंद्र सरकार तट पर रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं इस पूरे कार्यक्रम को मॉनिटर कर रहे हैं, उस पर नियंत्रण रखे हुए हैं। डॉक्टर जयशंकर दिन रात उनके अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं, विदेश के मंत्रियों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। हम प्रतिबद्ध हैं कि भारत का हर नागरिक सुरक्षित भारत वापस लौटे। सर, जो लोग आ गए हैं उनके परिवार वाले आश्वस्त हैं, लेकिन जिनके परिवार के लोग अभी भी वहाँ हैं उनको चिंता है, सरकार कह रही है लेकिन चिंता, उन्हें कैसे आश्वस्त करना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहूंगा कि हमने हर संभव प्रयास किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दोनों नेताओं से भी बात की है, रशियन प्रेसिडेंट, यूक्रेन के प्रेसिडेंट से। आसपास के सभी देशों के बॉर्डर्स पर हमारे एम्बेसी के ऑफिशियल्स हैं। लड़कों को बॉर्डर तक लाने के लिए यूक्रेन में भी इंतजाम किए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है और जैसे ही बॉर्डर पे आते हैं तो हमारे अधिकारी उनकी देखरेख में लग जाते हैं। उनको हवाई अड्डे पे लाके भारत से इवैक्यूएशन के लिए प्लेन्स भेजे जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी बच्चों को, सभी भारत के नागरिकों को जो वहां पर हैं, ये संदेशा जरूर देना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय डॉक्टर जयशंकर विदेश मंत्री और सभी अधिकारीगण इस काम पर निरंतर 24 घंटे लगे हैं। हम